Welcome class 12. Today we are going to discuss about one of the most important topic of balance of payment. Today we will talk about the balance of trade. As we all know that every country makes purchase and sale of goods and services from the rest of the world, as well as every country makes investment, receipts and payments of various types of loans, borrowings, and all these things are being done by the government, individual as well as the private firm. Okay, so today our topic is to discuss about the balance of trade, okay, and its consequences on the economy. So first of all, what is balance of trade? In the previous video we have understood about the balance of payment. So I want to tell you that balance of trade is only the part of BOP. Balance of trade is only the part of balance of payment, and balance of trade is the difference of only the visible goods. Means BOT is the difference of visible goods which has been exported from our country to the rest of the world, and the imports from the rest of the world to our country. Okay, so balance of trade, BOT, is the export of it is the difference of exports of goods and imports of goods. That is the visible items. Visible items. Why visible items? Visible items means we know that these types of goods are made up of some kinds of elements which can be feel, which can be touched, which can be smelled, and which can be easily measured. That's why due to the materialistic, it is called as the visible item, and also it can be easily caught up by the custom officials. That's why it is called as visible items. Okay. Sometimes balance of trade, okay, seen in surplus amount, and sometimes it is seen in the deficit amount. Just like the trial balance in the accounting concern, it is not need to be equal all the time, because sometimes the trial balance differ also. Okay, so with the same pattern, our balance of trade is sometimes become surplus and sometimes it become in deficit. So let us understand what is the surplus BOT and what is the deficit BOT. Surplus BOT means if a country's export is more than its import. Whenever country's export is more than its import, जब किसी country का export, visible goods का export उसकी import से ज़्यादा हो जाए, उसको बोलेंगे surplus BOT. ओके, तो इसको हम सरप्लस BOT बोलेंगे. लेकिन जब किसी कंट्री का इंपोर्ट यानी कि बाहरी कंट्री से वो ज़्यादा खरीद रहा है, जबकि अपनी कंट्री से जो उसके डोमेस्टिक गुड्स हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कम बेच रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास डेफिसिट देखने को मिलेगा. यानी कि सरप्लस मतलब कि BOT में फ़ायदा आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज का आना, और डेफिसिट BOP मैंने आपका ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज बाहर की तरफ चले जाना, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को चले जाना. तो एक तरह से डेफिसिट आपका नुकसान है और सरप्लस आपका फायदा है, जो कि हमेशा इकोनॉमी में होना चाहिए. किसी भी स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए, अगर इकोनॉमी में स्मूथ फंक्शनिंग करनी है, स्मूथ गवर्नमेंट चलाना है, तो गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है हमेशा सरप्लस में होना चाहिए, कभी डेफिसिट में नहीं होना चाहिए. कभी कभी ये बैलेंस्ड भी हो सकता है. बैलेंस्ड मतलब जितना हमने बाहर देश को बेचा उतना ही हमने बाहर देश से खरीदा. इट वुड बिकम बैलेंस. मीन्स द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम आवर कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इक्वल टू द इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू आवर कंट्री. ओके, so in that situation the BOT will become the balance. But moving ahead, okay, moving ahead with the difference of BOT and BOP. ओके, अगर हम आगे बढ़ें तो इससे पहले ये सीखें कि क्या डिफरेंस है BOT में और BOP में. एक्चुअली BOP इज अ वेरी वाइडर कंसेप्ट while the BOT is a narrow concept. Okay, BOT is only the part of BOP which is only concerned with the visible goods, while
BOP concerned with the visible goods, invisible services, unilateral transfers and the capital receipts. So with these items or with these values, we can say that BOT is only the part of BOP. Now the question arises that whether the unfavorable BOT can be made out of favorable BOT. Okay, question tells you कि अगर आपके पास BOT डेफिसिट में है और आपके पास BOP सरप्लस में है, तो क्या इस सरप्लस BOP से हम डेफिसिट BOT को खत्म कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यस, डेफिनेटली वी कैन मेक आउट ऑफ द फेवरेबल BOP ओके टू द अनफेवरेबल BOT. दूसरा सवाल, whether the unfavorable BOP can be made out of the favorable BOT, इसका आंसर होगा नो, the unfavorable BOP cannot be made out of the favorable BOT. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बताते हैं. सपोज करिए कि आपके पास कितना है, आपके पास 100 रुपए का प्रॉफिट होता है एक जगह, एक कंपनी से 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी कंपनी से 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है. टोटल आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 100 का प्रॉफिट हुआ और 10 का आपको नुकसान हुआ, ठीक. तो आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ से 90 का हुआ. वहीं दूसरी तरफ अगर 100 का लॉस हो गया और दूसरी तरफ से 10 का प्रॉफिट हो गया, तो क्या आपको यहाँ प्रॉफिट दिखाना उचित होगा? Whether you can show the real profit? No, it would be a loss of ₹90. तो वही सेम सवाल यहाँ पे आपको पूछा गया है कि अगर आपके पास अनफेवरेबल BOT यानी कि अगर आपके पास 10 रुपए का लॉस हुआ है और आपके पास 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या इस 100 रुपए के प्रॉफिट से 10 रुपए के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? तो आंसर होगा यस, डेफिनेटली वी कैन डू दिस. दूसरी तरफ अगर आपके पास 100 रुपए का नुकसान हुआ है और सिर्फ 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या इस 10 रुपए के प्रॉफिट से 100 रुपए के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? तो आंसर होगा डेफिनेटली नो, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं. अभी भी हम लॉस नहीं रहेंगे और कितने का लॉस होगा? 90 का लॉस होने वाला है, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द BOT एंड BOP. सो BOT इज ओनली द पार्ट ऑफ BOP, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. What are the components of BOP? So components की अगर हम बात करें तो BOP के दो components होंगे. जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, ठीक है, चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो, चाहे गवर्नमेंट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शंस जो भी आपके देश से किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी दो अकाउंट्स में होंगे. तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो दो होंगे, एक करेंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट. ओके, व्हाट इज करेंट अकाउंट? करेंट अकाउंट जनरली रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द विजिबल गुड्स, ओके, इनविजिबल सर्विसेज, unilateral transfers and all the receipts regarding the rent, interest and the profits only. Okay, means current account is that type of account in which only the current transactions is being recorded. Okay, like the goods, like the services, unilateral transfers, which is also called as unrequited transfers. यानी कि अगर हम grants, donations, gifts, रेमिटेंसेस अगर एक देश से दूसरे देश को हम ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, विच इज वन साइडेड. यूनिलैटरल मीन्स वन साइडेड, सिर्फ एक साइड. दूसरे साइड में हम इसकी रिटर्न की उपेक्षा नहीं करते हैं. जैसे सपोज करो कि आपको कोई बर्थडे आपका पड़ गया, ठीक है, उस बर्थडे पार्टी में किसी ने बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम आपको गिफ्ट किया, तो क्या आपने कभी एक्सपेक्ट किया कि आप भी उसके बर्थडे में, क्या आपने सोचा कि आप भी उसके बर्थडे में उतने का ही एक्सपेंसिव आइटम गिफ्ट देने जा रहे हो? बिल्कुल नहीं. आंसर होगा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है. तो इस तरह का ट्रांसफर्स हमारे देश में भी आता है और इस तरह का ट्रांसफर्स हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी करते हैं. जैसे कि अगर सपोज करिए कि फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ऐसा कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया, तो इस सिचुएशंस में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपके पास हेल्प के लिए
आपके पास इस तरह का क्या आता है, इस तरह का रेमिटेंसेस या इस तरह का आपको यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मिलता है देखने को। उसी तरह से अगर किसी बाहरी देश में इस तरह का कोई फ्लड आ गया, इस तरह का कोई सुनामी आ गया, साइक्लोन आ गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो हम भी अपने देश से क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हेल्प करते हैं ताकि हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो बना रहे। ठीक है, तो ये जितने भी आपके जो ट्रांजैक्शंस जो करेंट नेचर के हैं वो करेंट अकाउंट में क्या होते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है, अकाउंटिंग कंसर्न है। ठीक है, इसमें आपको एक डेबिट साइड मिलेगा और एक क्रेडिट साइड मिलेगा। तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आएगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा और जो भी फॉरेन एक्सचेंज आपके पास से जाएगा वो डेबिट साइड में जाएगा। बस इस बात को आप समझ लें कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज आपके लिए आ रहा है वो फायदेमंद है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज आपके लिए जा रहा है वो नुकसानदायक है। ठीक है, तो करेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होगा जिसमें किस चीज़ की रिकॉर्डिंग होगी, इसमें विजिबल गुड्स की रिकॉर्डिंग होगी, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम करते हैं गुड्स की फ्रॉम आवर कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। विजिबल इनविजिबल सर्विसेज की जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं फ्रॉम आवर कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम कोई यूनिलैटरल ट्रांसफर करते हैं, गिफ्ट ग्रांट डोनेशंस रेमिटेंसेस देते हैं और वहाँ से लेते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग होगी। और लास्ट अगर कोई हम इनकम या पेमेंट करते हैं, यानी कि अगर हमें कोई रेंट मिला, हमें कोई इंटरेस्ट मिला या हमें कोई प्रॉफिट मिला और यही सेम हमने भी उनको दिया, यानी हमने उनको प्रॉफिट दिया, हमने उनको इंटरेस्ट दिया, हमने उनको रेंट दिया, ये सब करेंट नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं और इनको हम कहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, हमेशा इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंट अकाउंट में करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बीओपी और आपका बीओटी क्या हो सकता है, इसका तालमेल बिगड़ सकता है और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये हमेशा क्या रहे, बैलेंस रहे। ये कभी कभी माइनस में भी होता है और कभी कभी प्लस में भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो करेंट अकाउंट है ये भी दो तरह का हो सकता है, सरप्लस करेंट अकाउंट एंड डेफिसिट करेंट अकाउंट। ओके, when the credit side is more than the debit side it is called as the surplus current account, and when the debit side is more than the credit side it is called as the deficit current account। ठीक है, अब ये जो डेफिसिट करेंट अकाउंट हो रहा है इसकी भरपाई कहाँ से कर सकते हैं, इसकी भरपाई हम कैपिटल अकाउंट से कर सकते हैं, बोरोविंग्स करके, सेल ऑफ एसेट्स करके। ठीक है, या फिर किसी और तरीके से हम इसकी भरपाई कर सकते हैं। इसको हम किसी दूसरे वीडियो में सीखेंगे, लेकिन उसके बाद दूसरा जो आपका पार्ट है, कंपोनेंट है आपका बीओपी का, वो है कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? जनरली कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स all the transactions between the residents and the rest of the world which cause changes in the assets and liabilities of the individual as well as the government। यानी कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होगा जो क्या कर सकता है, जो कि जो आपके यहाँ रेसिडेंट हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ रेसिडेंट हैं और जो रेसिडेंट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, कैपिटल अकाउंट में होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये कैपिटल अकाउंट एक्चुअली करता क्या है, कैपिटल अकाउंट किसी भी इंडिविजुअल के जो आपके इकोनॉमी में है तो उसके इंडिविजुअल के एसेट्स और लायबिलिटी को चेंज कर सकता है, वो इस तरह का अकाउंट होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये कैसे कैसे हो सकता है, किस किस के फॉर्म में हो सकता है, लेटर ऑन आई विल डिस्कस। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होगा जो कि आपकी इकोनॉमी के जो रेसिडेंट्स हैं या जो गवर्नमेंट है उनके एसेट्स और लायबिलिटी को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब ये कैसे कर सकता है, किस किस के फॉर्म में कर सकता है, ये देखते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट हैं, जो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट हैं वो तीन हैं, दैट इज बोरोविंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ओके, अब इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहला है बोरोविंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या है बोरोविंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड? जैसा कि आप जानते हैं कि हम एज ए कंट्री, ओके, या हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करती है, बोरोविंग्स करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से और लेंडिंग भी करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। ठीक है, तो जब भी हम बोरोविंग करेंगे या सेल ऑफ एसेट्स, अपने एसेट्स को किसी बाहरी देश में बेच देंगे तो जो उससे रिसिप्ट्स हमारे पास आएगा, ठीक है, अगर हम बोरोविंग करेंगे तो हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट्स आएगा, अगर हम सेल ऑफ एसेट्स कोई अपना शेयर किसी कंपनी का
उनको बेच देते हैं तो उनसे हमें क्या मिलेगा, हमें रिसीट्स मिलेगा। वो सब का सब उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में उसको हम ले जाएंगे। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम उनको पैसे देते हैं, अगर हम उनको पैसे देते हैं, हम अपने लोन्स का रिपेमेंट उनको करते हैं, ठीक है, तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज को सीधे हिट करेगा। इससे फॉरेन एक्सचेंज आपके देश में कम होगा और आप इसकी रिकॉर्डिंग हमेशा डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट में करेंगे। ठीक है। फिर से देखिए, जो बोरोविंग्स आपके यहाँ आपके देश में आता है, ठीक है, और जो फॉरेनर्स आपके लोन का रिपेमेंट करते हैं, वो दोनों कैपिटल रिसिप्ट है या आपने कोई सेल कर दिया है अपने एसेट का, ये तीनों आइटम जो वहाँ से रिसिप्ट के रूप में आएगा वो आपका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसकी रिकॉर्डिंग होगी। और दूसरी तरफ अगर आपने लेंडिंग किया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, वो पैसा प्लस आपके यहाँ आपने उनको रिपेमेंट किया है उनके लोन्स का, वो पैसा प्लस उन्होंने आपको जो एसेट्स बेचा है उसका पैसा अगर आप उनको देते हैं, ठीक है, तो आप फॉरेन एक्सचेंज से ही देंगे, फॉरेन करेंसीज में ही देंगे। आपके इकोनॉमी में फॉरेन करेंसीज की कमी होगी, इसलिए आप इसकी रिकॉर्डिंग हमेशा डेबिट साइड में करेंगे। ठीक है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपनी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज का कराते हैं और उनकी कंपनीज में हम शेयर्स और वहाँ के एसेट्स को हम खरीदते हैं। ठीक है। तो अगर वो हमारे यहाँ कंपनी में अपने यहाँ शेयर खरीदते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, तो उनका फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा, तो ये हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा कैपिटल अकाउंट के। अगर हम उनके शेयर्स को खरीदते हैं या हम उनके यहाँ एसेट्स खरीदते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज वहाँ जाएगा, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग हम हमेशा डेबिट साइड में करेंगे। ठीक है। और लास्ट है आपका चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है? यू ऑल नो दैट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट विच इज बीइंग केप्ट इन द सेंट्रल बैंक। अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, या कोई करेंसी किसी गवर्नमेंट को मिलता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस रिजर्व को अपने पास सेंट्रल बैंक में यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व के रूप में रखती है। ठीक है। तो अगर वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट रखती है, ठीक है, तो ये डेबिट साइड में इसकी रिकॉर्डिंग होगी। और अगर गवर्नमेंट उस रिजर्व को विड्रॉ कर लेती है, ठीक है, सपोज करो उसमें से कुछ पैसे फॉरेन एक्सचेंज के निकाल लेती है, तो वो रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग हमेशा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में किया जाएगा। यानी एनी विड्रॉल फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज, एनी विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी recorded in the credit side of the capital account, and any deposit of foreign exchange to the RBI will be recorded in the debit side of capital account। ठीक है। तो इस तरह से आपका करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में वर्क करता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इसके कंपोनेंट्स में, बैलेंस ऑफ ट्रेड में, सरप्लस या डेफिसिट में, या फिर इसके डिफरेंस में, तो आप में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें।